Hello students, today we are going to discuss our topic of transition motion which I left. So this topic is collision. So we will do some numerical in this as well, and we will look over the law on which this collision depends. So let's begin with our 14th lecture. So this is law of conservation of linear momentum on which collision is depend. So let's understand what is this. Before going to the law, let's see the term linear momentum. Linear momentum, we have already seen this in the second law of motion. It's a product. It's simply the product of mass and its velocity. Okay, it's denoted by the p, small p, and it's also a vector quantity since velocity is a vector quantity. It's having a unit kg meter per second. Okay, that's it. So in second law, what we see that change in second law of Newton, what we see the rate of change in linear momentum is directly proportional to the external force applied. Right? This we have seen. If there is no force, if there is no external force, that means the rate of change of momentum is zero, or we can say that there is no change. That means change in momentum is zero. From this, we can say that conservation of momentum is that if there is no external force applied on the body, okay, if there is no external force applied on the body, then we have seen from the second law that momentum will not change. No change in momentum. No change in momentum of the body. That means the linear momentum before the event, कोई भी event like a collision, event like a blast of bomb, okay, even like just forget the example. Okay, just take the collision and blast. Okay, so this event, the linear momentum before the event and linear momentum after the event should be conserved. That means should be equal. If the condition is if there is no external force applied on the body. Clear? This comes from the second law of motion. Okay, clear? Now let's begin with our collision. Okay, before that we will have one question to have the understanding of this law of conservation of momentum. What is this? This is simply that the momentum of there is a system of particles. Suppose there is a system of particles 1, 2, 3. Okay, they all are in motion. Okay, with some v1 velocity, v3 velocity, v2 velocity, having mass m1, mass m3, mass m2. Okay, this system of velocity, that means there are 3 particles and I assume this is a system. ठीक है, अब ये ट्रांसलेट कर रहे हैं. ओके, इट्स मूव्ड हियर और कभी कुछ भी कोलाइड करके कुछ भी कर रहे हैं. ठीक है, बट इन सिस्टम जो भी सिस्टम है ये, सपोज यहाँ पे 2 आ गया या 1 आ गया, यहाँ पे 3 है. इनकी जो भी वेलोसिटीज हैं अब नाउ आई हैव सेड इज ये इनिशियल्स थी, अब यहाँ पे इसको डैश कर देते हैं. ओके, सो व्हाट द कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ सेज दैट p1 p2 p3, that means p1 is a momentum of this particle 1, p2 is a momentum of particle 2, p3 is a momentum of particle 3. Okay, this should be equals to p1 dash, p2 dash, p3 dash. Okay, so linear momentum should be conserved. Clear? So this we have to apply it in this following question. So let's read the question. A shell is fired from a cannon with the velocity v making an angle theta with the horizontal. Okay, there is one shell fired from the cannon in this velocity, in this angle with the velocity v, okay, making angle with the horizontal theta. At the highest point in its path it explode. ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था. प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर ये ब्लास्ट हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है. ओके, इनटू 2 पीसेस, जिसका मास जो m था वो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा इन
this. I have considered this m1, m2. Okay, in two equal masses. Okay, equal masses, that means m1 equals to, sorry for this, m1 equals to m2. I consider this m. Okay, one of the piece reaches back to the cannon. That means from this, जो एक piece है, एक one piece reaches back to here, back to original position O. Let's say this is O position. So one piece from this, let's say one m1 mass, come back to the O. Okay, then the velocity of another piece immediately after the explosion. Okay, just after the collision, what should be the velocity of this particle 2, second particle, that means m2 particle, that we have to find. Okay, I have discussed this earlier in the case of projectile. Since at the position when it's being thrown, यहाँ पर दो velocities होंगी. That means one velocity in the x direction, another velocity in y direction. And I have discussed this कि projectile motion में after throwing ball, contact छूट चुका है. We are not applying any force after throwing it. So there is no velocity. There is no not velocity. There is no acceleration in x direction. So velocity will constant in x direction. Suppose this is vx. Okay, and I am taking this in y direction. Suppose this is vy. Clear? So throughout the projectile motion, this vx, that means the velocity in x direction will remain same. Same will happen at this highest point. Highest point पर आपकी कोई भी velocity in कोई velocity in y direction नहीं होगी. Okay, so velocity at a point in y direction is 0. Y direction में कोई velocity नहीं होगी. There will be only velocity in x direction. I am considering that VA in x. ठीक है, VAX. So this VAX should be equals to the velocity in x direction at point O. Okay, this is Vx, and we can say what is Vx. Vx is the horizontal component of this V. It means V cos theta. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा. So what is the momentum just before? Okay, so before explosion. Before explosion, what is the momentum? Let's say it's a momentum P1. Momentum is total mass m, क्योंकि पूरा मास था उस समय, into the velocity. Velocity यहाँ पे क्या थी? Vx, Vax. So that is V cos theta. ठीक है? Now after collision, not collision, after explosion, I consider is P2. वो क्या होना चाहिए? m1 into v1 plus m2 into v2. ठीक है, m1 is the particle one mass, m2 is the second particle mass, and respectively their velocity v1 v2. ठीक है, अगर m1 particle को back to O आना है, that means it should have equal amount of velocity in x direction. In questions it says that one particle reach back to cannon तक आ जाके. That means it should have the same velocity जिससे आया. That means it should have the same velocity in x. That should be vx. ठीक है. So this velocity v1 of our particle 1, it should be equals to ठीक है. So v1 equals to minus v cos theta. y minus, क्योंकि इसकी velocity opposite in direction of x है. पहले तो in direction of x थी, अब opposite है. That's why negative sign come here. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम अप्लाई कर देंगे conservation of linear momentum. So what is that? The linear momentum of system before explosion, it should be equals to the linear momentum after explosion. ठीक है, ये हम यूज करेंगे. From this, the linear momentum before is p1. That means वो कितना है? m into cos v cos theta equals to m1. m1 कितना है? m1 is the mass just half of this m, original m. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये m1 m2 है, ये क्या होगा? m1 m by 2 हो जाएगा. ठीक है, so m1 is m by 2 into the velocity v1 negative v cos theta plus m by 2 v2 that we have to calculate. ठीक है, क्लियर? So अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ. From here what m से m सारे कैंसिल हो जाएंगे.
So it will shift this side. That will be v3 by 2 cos theta equals to v by 2. So your answer will be v, sorry, this is v2 3v cos theta. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. ओके, क्लियर. वन मोर थिंग विच आई नीड टू टेल कि अगर मान लो कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मान लो कि दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस वन, दिस इज टू, ठीक है, दिस वन, दिस इज टू. अगर इनकी वेलोसिटी, देयर इज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसकी भी कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है. ओके, ये यार स्ट्रेचर है, इट्स हैविंग अ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम को, जो भी कंजर्वेशन ऑफ आपका लीनियर मोमेंटम, वी विल डिवाइड इनटू दिस इज v1 x component, this is v2 x component, sorry v1 y component. सो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन. दिस इज p1 x plus p2 in x direction. This will be p1 dash, that means after collision जो momentum है particle 1 का in x direction, plus after collision the momentum of particle 2 p2 dash in x direction. ये कंजर्व रहेगा, ठीक है, because there is no force in x direction, external force in x direction. ठीक है, there is no external force in x direction. सेम y में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इन y, ठीक है, इन y. सो वी कैन ऑल्सो कंजर्व दिस इन y डायरेक्शन. सेम थिंग, मतलब हम स्प्लिट कर लेंगे. आई होप आपको मेरे बात समझ में आ रही होगी. ठीक है, इन किसी भी फर्दर क्वेश्चन में अलाउ होगा, अगर कोई ऐसा केस आएगा तो वी विल अप्लाई दिस, वी विल स्प्लिट द कंजर्वेशन इन y and x axis and we will try to solve the question. Okay, clear? This we can do. Okay, now try we will move to our topic, collision. So collision, what is collision? It is short phenomena in which, short time phenomena in which the momentum of individual body undergoing collision. Okay, यहाँ पे बहुत केयरफुल वर्ड है, इंडिविजुअल बॉडी अंडरगोइंग कोलिजन. ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी अंडरगोइंग कोलिजन चेंज सिग्निफिकेंटली. जो आपका मोमेंटम चेंज है, इट्स नॉट फॉर द होल सिस्टम, इट्स फॉर द इंडिविजुअल बॉडी. क्लियर? सो व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन इज अ शॉर्ट टाइम फिनोमेना in which momentum of individual body undergoing collision gets significantly change, significantly वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब मे बी वो रिवर्स हो जाए, हम देखेंगे कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपका मोमेंटम जस्ट रिवर्स हो जाता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द टाइप ऑफ कोलिजन, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. टाइप ऑफ कोलिजन, फर्स्ट इज द इलास्टिक, perfectly elastic collision, perfectly inelastic collision and partially elastic collision. Okay, so briefly देख लेते हैं what is perfectly elastic collision, inelastic collision and partially elastic collision. ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट है, दिस 1 2, ठीक है, ये मूव कर रहा है सम v1 वेलोसिटी, ये मूव कर रहा है सम v2 वेलोसिटी, दोनों कोलाइड कर गए. ठीक है, आफ्टर कोलिजन द टर्म इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक मींस जब कोलिजन हो रहा था तो देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन टू बॉडी, बॉडी डिफॉर्म ही नहीं होगी, मतलब कहीं भी एनर्जी लॉस है ही नहीं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज there is no energy loss, no energy loss. जब आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी. एंड इन एवरी केस वी कैन अप्लाई द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड. ठीक है, अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे हाँ यहाँ पे जब ये आपका बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ठीक है, दे हैव वेलोसिटी आइदर इक्वल और डिफरेंट. दे हैव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आइदर इक्वल और डिफरेंट. ठीक है, सही भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, वो क्वेश्चन कंडीशन बताएगी. बट इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें हमेशा केस ऐसे ही होगा. सपोज ये बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक,
ये बॉडी ओके v1 वेलोसिटी दी, ये v2 वेलोसिटी दी. After the collision, what happened? They will stick together and move with single velocity. यहाँ पर there will be definitely loss of energy. ठीक है, लॉस है यहाँ पर, एनर्जी लॉस हो गया क्योंकि यहाँ पर बिना डिफॉर्मेशन के बॉडी चिपकेगी नहीं एक दूसरे को. ठीक है, एक बॉडी ने अपनी एनर्जी लॉस डेफिनेटली वहां पे करी है, तो दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जो ये हम एनर्जी लॉस लिख रहे हैं, इट्स इन द काइनेटिक एनर्जी. ओके, हियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड. ठीक है, एंड पार्शियली इलास्टिक, दैट मींस पार्शियली इलास्टिक का मतलब ये है कि आपका ये स्टिक नहीं करेगा बट देयर इज अ लॉस. परफेक्टली इलास्टिक में क्या है कि यहां पर डेफिनेटली लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है, और बॉडी स्टिक हो गई एक दूसरे से और एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है आफ्टर कोलिजन. ये बट पार्शियली में क्या है, दे कैन हैव द डिफरेंट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. डैश डैश. ठीक है, बात आफ्टर कोलिजन ये जरूरी नहीं स्टिक करे, दे विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी. बट हाँ, डेफिनेटली बॉडी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है. हियर आल्सो एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉस्ट. ठीक है, हियर आल्सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहीं भी ला सकते हो जब तक आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है. जब तक आपका ये कंडीशन है, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वी कैन अप्लाई. ठीक है, क्लियर. सो जस्ट रीकैप, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है. दैट मींस यहां पर एक पॉइंट कह सकते हैं एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व. एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, आपकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड. परफेक्टली इलास्टिक में आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाइड हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड हो जाएगा. यहाँ पर एक चीज कंडीशन होती है कि आपका आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल एक साथ एक ही वेलोसिटी चलेंगे. परफेक्टली इलास्टिक में ये कंडीशन नहीं है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी चल सकते हैं आफ्टर कोलिजन. यहाँ पर आपकी एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस है यहाँ पे, एंड वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हियर आल्सो. Okay, so let's see some cases in perfectly elastic collision. So this is one of the special case. There is a system in which two particles are there. Particle 1, particle 2. Particle 1 have the mass m1, particle 2 have the mass m2. ठीक है. So ये move कर रहे हैं with some u1 velocity, u2 velocity. ठीक है. If the m1 equals to m2, अगर ये दोनों का mass equal है, ठीक है, और perfectly elastic collision है, ठीक है, दो कंडीशन है, मास इक्वल है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है. सो आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंड, देयर वेलोसिटी विल इंटरचेंज. अगर ये चल रहा था v1 से और ये चल रहा था v2 से, तो v2 से चलेगा अपनी फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट. आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी. ठीक है, सपोज व्हाट आई शुड राइट, इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट. दैट मींस v1 डैश इक्वल्स टू v2 एंड v2 डैश विल बी इक्वल्स टू v1. ओके, क्लियर. अगर इनका डायरेक्शन भी अलग होंगे तो भी सेम कंडीशन मिलेगी. ओके, जस्ट वन सेकंड. ओके, एक्सक्यूज मी, इट्स जस्ट अ फोन रिंग. ओके, जस्ट बिगिन. So here also, if direction changes, and this is the mass of m1, this is the mass particle m2, and these are the direction of velocities m1 and m2 velocity. ठीक है, अगर यहाँ पर भी अगर दोनों के मास सेम है, so their velocity will interchange. That means exactly interchange. अगर ये डायरेक्शन पार्टिकल 2 डायरेक्शन आपका नेगेटिव x है, तो पार्टिकल 1 का अब यहाँ पर डायरेक्शन जो है नेगेटिव x with same magnitude of velocity v2. That means v1 dash should be equals to v2, and this is the particle mass m1. यहाँ जो velocity है v2 dash, it will be exactly equals to v1 with direction as well. ठीक है, क्लियर. ये आपका स्पेशल केस है, डायरेक्टली क्वेश्चन में हिट करता है. और जब भी आपका सेम दे रखा हो तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाने की पड़ेगी, और डायरेक्ट आंसर से आता है. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा हल्का सा अगर दिमाग में रखोगे तो ये हेल्पफुल रहेगा. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस केस हियर. सो लेट्स मूव टू डिफरेंट केस, टू डिफरेंट केस. अगर इसमें क्या है, एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल पे अगर कोई बॉल नॉर्मली टू सरफेस हिट करती है या बॉल से हिट करती है with some v velocity, so it will come back with same velocity.
इट विल कम बैक विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है कि आपकी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट हिट करता है विद v वेलोसिटी या v u वेलोसिटी विद एन एंगल थीटा। ठीक है, और ये आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है भाई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, देन इट विल कम बैक, it will come back from the same angle with this vertical ball and with same velocity in magnitude, same velocity in magnitude। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट इफ वी हिट नॉर्मली डायरेक्शन विल ओनली रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम रहेगा। क्लियर, बिकॉज आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं। ओके, यस, सो लेट्स डिस्कस perfectly elastic collision. I have said this earlier. Okay, if two bodies are moving before the collision, after collision, what happened? They will stick together and move, and both will move with same velocity. Let's say v. If they will having initial velocity u1, u2, so they will move after collision with v velocity. Clear? So we can apply conservation of linear momentum. Okay, once again. So we can write the equation. It's m1 v1 m1 u1 plus m2 u2. This is the momentum before collision. It should equals to m1 v plus m2 v. ठीक है, this is the linear conservation of linear momentum. ठीक है, conservation of linear momentum. We cannot apply here conservation of energy, बट वी कैन से दैट जो भी आपकी एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस विल बी इक्वल्स टू वर्क डन इन डिफॉर्मेशन। और वी कैन से सिंपली एनर्जी लॉस इन डिफॉर्मेशन। ठीक है, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन या एनर्जी लॉस एंड डिफॉर्मेशन, अगर ये वैल्यू गिवन है, वी कैन अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी लॉस। काइनेटिक एनर्जी लॉस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आई कैन यूज द एनर्जी लॉस इन दिस वे। ठीक है, अगर मेरे को वर्क डन इन डिफॉर्मेशन और एनर्जी लॉस्ट की वैल्यू गिवन हो, एनर्जी लॉस्ट इन डिफॉर्मेशन, या दे रखोगे दिस मच ऑफ एनर्जी इज बीन लॉस्ट, kinetic energy is being lost. So we can directly apply the difference between the final kinetic energy minus initial kinetic energy of system. ठीक है, this will be equals to loss in kinetic energy. तब मैं कुछ इक्वेशन लगा सकता हूँ अगर ये मुझे गिवन होगा। क्लियर? One more thing, there is a term called coefficient of restitution, which I haven't discussed yet. So it's a term related to the collision. So what is this? It is the ratio of the separation, velocity of the separation to the velocity of approach. ठीक है, before collision there is a velocity, combination of velocity by which two objects getting closer. So it's called the velocity of approach. ठीक है, so before collision the velocities are taken as u. So at the bottom this is the difference of the initial velocity, which is called the velocity of approach. Clear? After collision, these two objects try to get separate. Okay, these two collision after get separate. So after collision, velocities are called as v, final velocities. So these are difference of final velocities. Clear? So it is the ratio of the velocity of separation to the velocity of approach. That is difference. Okay, it's a difference. We have taken the mod here. It is the difference v2 minus u1 upon, you can say u2 minus u1 or u1 minus u2. It's a difference, only difference. कोई वेलोसिटी ज्यादा हो कोई कम हो उसको मतलब नहीं पड़ता। Okay, and what is the significance of this term coefficient of restitution? इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, it will apply to only two cases, mainly in the case of this perfectly inelastic and partially inelastic. ठीक है, in the case of perfectly inelastic this value come out to be, because there is no difference in the velocity of separation. ठीक है, ये velocity दोनों की same है, so 0. So this e will become 0. And for this value is vary from
0 to 1, 0 to 1. And in the case of perfectly elastic collision, this value of E is always 1. Value of E is always 1. That means the velocity of separation is always equal to the velocity of approach. Clear? So let's move further to understand partially elastic collision. So partially elastic collision, in this we have seen that the coefficient of restitution vary from 0 to 1. One thing, we can apply coefficient of restitution formula anywhere. Okay, and one thing what we can apply in this because it's not getting a stick, this m1 is m2, it's not getting a stick after the collision, so we can apply two things here. First thing, conservation of linear momentum. That means we can say that m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 m1 v1 plus m2 v2. We can also apply if equation of energy if there is the loss of energy is given. Okay, if kinetic energy loss is given, excuse me for the writing, it's equals to kinetic energy of final minus kinetic energy of initial. Kinetic energy, this is kinetic energy of system. Okay, so we can apply these two equations. And third one, coefficient of restitution we can use. Okay, so it is similarly for the equations, similarly as the case of perfectly elastic collision. Okay, but yes, in the case of this perfectly elastic collision, we can apply all three equations. First is conservation of linear momentum. That means m1, if I say yes, u1 u2, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 m2 v2. Okay, this is the conservation of linear momentum. And we can also apply the conservation of kinetic energy. It means kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle before collision, and kinetic energy of first particle after collision plus kinetic energy of second particle after collision. Okay, this also is valid here because we have discussed the kinetic energy conserved in the case of perfectly elastic collision. Yeah, we can apply this equation as well as the coefficient of restitution. Velocity of separation upon velocity of approach. U1 differences. Okay, these are differences mod. Okay, so let's quickly move to the questions of linear momentum. Let's begin. So let's begin with our second question, right? So in this case, there is a bullet of mass 40 gram traveling horizontally with a speed 500 meter per second, passing through a wooden block of mass 10 kg. Okay, as this shown in figure. Initially at rest, that means this block is initially at rest on the surface level. Okay, the bullet emerged with the velocity of 100. Okay, after striking this, bullet goes inside and emerge out with the velocity of 100 meter per second. Clear? And block slides because of this action. Blocks slides by 20 centimeter on the surface before coming to rest. ठीक है? So there must be friction. अगर ये frictionless surface होती तो जो velocity इसको मिलती, so it will be continued. But अगर आपका ब्लॉक कुछ डिस्टेंस के बाद रुक रहा है, that means definitely यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है. ओके, डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन है. तो क्लियर. अब सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हम कंजर्वेशन की लिमिट कैसे लगा लेंगे, यहाँ पे तो फ्रिक्शन आ जाएगा. बट आई एम नॉट सेइंग कि आप कोलिजन के बाद लगाओ. आई एम सेइंग यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन मोमेंटम एट द कोलिजन. देखो कोलिजन होने पे क्या हो रहा है, जस्ट वेलोसिटी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बट बॉडी मोशन में नहीं आई है. इट्स कमिंग टू मोशन. जैसी बॉडी में मोशन आएगा तब लगेगा फ्रिक्शन. क्लियर. सो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट हैव द पिक्चर कि जस्ट स्ट्राइक हुआ है, उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे. दैट विल बी द आवर इनिशियल वेलोसिटी फॉर द केस. ठीक है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है. सो व्हाट इज द फाइनल कंडीशन. फाइनल कंडीशन में सिर्फ आपके पास आपका ये ब्लॉक होगा. ओके, आई हैव टेकन द ब्लॉक एंड द बुलेट.
somewhat here because it's emerged out. Sorry for this. ये बाहर निकल चुकी है, ठीक है. if it's emerged out, it's having the velocity in this direction जो आपको गिवन है कितना 100, ठीक है. कंसिडर दिस बिफोर, this is before, and this is after. क्लियर क्लियर. यहां पर जो मैं इसको u1 बोल देता हूं एंड u2 which is 0, ठीक है. मास आपको गिवन है m1 is 40 ग्राम, m2 is 10 kg. सिमिलरली यहां पर जो वेलोसिटी ब्लॉक को मिलने वाली है वो हम निकाल लेंगे, दैट इज v2. v1 हमें गिवन है, इट इज 100 मीटर पर सेकंड. क्लियर. सो what I'm saying कि आप at the instant of the collision you can apply the conservation of moment, linear momentum. Okay, so conservation of linear momentum, that means m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. Clear. m2 v2. So just suppose to put the value, it is 0.04 into 500 plus 0 because u2 आपका 0 equals to m1 10, v you need to calculate, v1 you need to calculate. This is 0.04 into v2 it's v2 is good. Oh, sorry, sorry. m1 is 0.04 into 100. Okay, this is 10 into v2 में करेगा. So from here we can calculate v2. ये घटेगा 4 हो जाएगा, 460. Yes, okay. This will come out to be 10 into 1.6 meter per second. Clear? V2 I got V2. What is our purpose? यहाँ पर हमें निकालना है what is the coefficient of friction between the block and surface. ये हमें निकालना है. Now let move to the next page. इसको हम ले लेता हूँ next page में. ओके, अब कंडीशन क्या है? लेट्स मूव दिस बुलेट. ये बुलेट जरूरत नहीं है मेरे को. इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव कर देता है. ठीक है. सो व्हाट इज द कंडीशन? यहाँ पर आफ्टर स्ट्राइकिंग, यहाँ पे मुझे पता है अब आई विल टेक द इनिशियल वेलोसिटी हियर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब केस अलग हो चुका है. आई विल से इट्स u डैश. कितना था हमें कहा था 1.6. इट विल बिकम द इनिशियल फॉर दिस 1.6 मीटर पर सेकंड. ब्लॉक कुछ टाइम बाद जाके रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है. व्हाट शुड बी द फाइनल वेलोसिटी? सपोज यहाँ पे आके ब्लॉक रुक गया है, ठीक है. सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस ब्लॉक की? इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. ये डिस्टेंस पता है मेरे को, इट इज गिवन. यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर. सो आई विल टेक s इक्वल्स टू 0.2 मीटर. क्लियर? आई कैन अप्लाई क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक बैक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, which is equal to mu, क्योंकि यहाँ पे kinetic है u mu n, and what is normal reaction? It's equals to the weight, that means 10 into g. 10 is mass. Clear? So can I calculate the reaction here? जो opposite लग रहा है, that means this mu into 10 into g upon 10, that is mass. Acceleration आ गया mu g. Acceleration I got mu g. ये acceleration है but negative direction है, ठीक है. So I'll take this negative. Clear है इतना? क्योंकि negative direction में लग रहा है. So I'll take this negative. So what I have the acceleration minus ug. I have initial velocity u dash 1.6 meter per second. I have final velocity 0. What I need to calculate? I need to calculate the friction. ये मुझे निकालना, ठीक है. और I also know the distance. That is 0.2
पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो ये पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। सो अप्लाई द थर्ड लॉ, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ए 0 1.6 स्क्वायर 2 into mu g minus equals to into s, सॉरी s हमें गिवन है वो लिख देते हैं 0.2, ठीक है। फ्रॉम हेयर you will get, because g here is given, okay, take g 10, take g 10, or take g 10, you will get, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन सिंपल ही है, बट दो चीजें मिक्स हो गई है, सो इट विल बिकम समवॉट लेंथी, बट इट्स नॉट। अगर प्रैक्टिस करोगे तो लेंथी नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the third question. So in this, read carefully because it's having a lot of knowledge. Okay, so okay, let me write the velocity here. It is 20 meter. So let me understand. Let me tell you what the question is. Okay, there is a block A and there is a block B. The surface of block A is smooth. Surface of block B is rough. Okay. Initially, the block B is at rest. Initially, the block B is at rest, and block A is having the velocity 20 meter per second in x direction. Clear? And what is the coefficient of friction of block B with this surface is 0.1. And as I say, the block A is having a smooth surface with the floor, so it's having 0 coefficient of friction. Clear? So what in this case, what we need to do, we need to find the distance traveled by block B if the collision is elastic. Okay, suppose there is a collision, क्योंकि रेस्ट पर है, ये is having some velocity in x direction, so it will definitely have a collision. After collision, if the collision is perfectly elastic, क्या होगा बताया था मैंने, सेम मास है, सेम मास है तो अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा पूरी, ठीक है। ट्रांसफर कर देगा, तो ट्रांसफर करने के बाद दिस ब्लॉक इफ मूव, इफ हैविंग द फ्रिक्शन लगेगा, so friction will try to oppose the motion, and after some distance it will get to rest, ठीक है। क्लियर? द नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक हमें निकालना। सो लेट्स बिगिन दिस। आई शुड से कि आप इसको पॉज करो एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इट विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर माइंड that you can ask. Okay, so let's have the condition before and after. This is a condition before, and the condition after. The condition after will be, there will be no velocity, but there will be velocity in B, but in which surface B will moving, because the surface of B is having friction, so it will having some opposite force, ठीक है, some opposite force. Excuse me for this direction, ये direction थोड़ा सा, right. So this is before and this is after. Clear? ये after है. As I know, same case है, ये 0 था, u2 0, u1 20 दे रखा है, तो यहाँ पर v1 0 हो जाएगा, एंड जो v2 है इस कम टू 20। ओरिजिनल इलास्टिक है और दोनों के दोनों सेम मास के हैं। क्लियर? एंड दिस विल कम दिस विल नॉट कम इनटू पिक्चर, जस्ट कोलिजन हुआ है अभी, ठीक है। तो ये फोर्स अभी मैं इसको देख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, जस्ट अभी उसने वेलोसिटी ली है, चलेगा अभी, फिर देखूंगा मैं इसको। तो I have done the velocity part। अगर मैं कंजर्वेशन मोमेंटम मोमेंटम लगाता तो I'll get this velocity जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दी। क्लियर? नाउ I take the next part जहां में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट ये है क्या? ये नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका? अब
ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी v2 है, जिसको मैं अभी यहां पर चेंज कर ले रहा हूं। आई टेक दिस u डैश, ठीक है। अब यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है एंड इट इज म्यू एम जी, म्यू एम जी। और अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, ये तो फ्रिक्शन फोर्स था, अब बात करूंगा एक्सेलरेशन की, तो कितना होगा म्यू जी एक्सेलरेशन, जो कि नेगेटिव होगा, क्लियर, जो कि नेगेटिव होगा। सो आई वुड व्हाट आई डू, आई सिंपली लेट मी दिस, I will simply apply equation of motion here, ठीक है। इक्वेशन मोशन अप्लाई करूंगा मैं, एट मीन्स कौन सी करूं, हाँ थर्ड कर लेता हूँ, बिकॉज आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, v1 डैश u1 डैश स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये जीरो है, ये 20 दे रखा है स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एसलेशन माइनस म्यू जी, और हमें निकालना डिस्टेंस, ठीक है। तो ये विल 400, ये माइनस है एंड मैथ में से कैंसिल हो जाएगा, म्यू कितने के गिवन है 0.1 एंड दिस इज गिवन 10, सो यहाँ से एस निकलेगा एंड दैट एस विल बी 200, ठीक है। ये किस केस के लिए है, फर्स्ट केस के लिए, दिस फॉर द फर्स्ट केस, ए के लिए है, ओके। So just copy this question and we will try this for the our next case, perfectly inelastic collision. Okay. Now, what's the difference between this? हमें क्या, अब डिफरेंस क्या मिला है इस केस में? डिफरेंस इतना मिला, अब यहाँ पर हमें कंजर्वेशन मिलीमीटर लगाना पड़ेगा और वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, सॉरी ये ठीक है, ये तो है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या वेलोसिटी होने वाली है, सो आई हैव टू कैलकुलेट दैट। बट मुझे ये चीज पता है, कोई परफेक्टली इलास्टिक है तो ये दोनों ब्लॉक चुपक जाएंगे, ये दोनों आप चुप हो जाएंगे यहाँ पे एंड इट विल ट्राई टू मूव टुगेदर, ठीक है। अब ये टुगेदर मूव करेंगे विद सम कॉमन वेलोसिटी, विद सम कॉमन वेलोसिटी व्हिच आई कॉल इट v, मैं ऐसे बोल दूंगा v, ठीक है। तो कंजर्वेशन मिलीमीटर लिखते हैं, दैट मींस m1, दैट मींस m u, चलो लिख लेता हूं पूरा, ठीक है। सो पुट द वैल्यू, ये क्लियर, m से m कैंसिल, तो यहां से तो ये 2 भी हो जाएगा, इट विल गेट v इज 10, तो ये अब यहां से 10 से चलेगा, क्लियर। अब देखो ये इनइलास्टिक का है क्वेश्चन, क्वेश्चन किसका है, इनइलास्टिक का है, हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते अभी, आई हैव टू अप्लाई एनर्जी थिंग हियर, एनर्जी चीज लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ आई विल डू क्वेश्चन हियर, लेट मी कॉपी दिस थिंग टू फर्दर पेज, देखिए फ्रिक्शन सिर्फ आपको किस में लग रहा है, फ्रिक्शन आपको लग रहा है बिकॉज ऑफ द दिस ब्लॉक, बी ब्लॉक, ठीक है। तो बी ब्लॉक लग रहा है तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां से लगेगा, बी ब्लॉक से लगेगा, फ्रिक्शन सॉरी फ्रिक्शन लगेगा बी ब्लॉक से, ठीक है। और वो कितना होगा, दैट विल बी एम सॉरी म्यू एम जी, ठीक है, म्यू एम जी होगा। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट चल लेता है, ऑब्जेक्ट सॉरी ब्लॉक बी आपका एज डिस्प्लेसमेंट चल लेता है, ठीक है। सो व्हाट वर्क डन, वर्क इज बीन डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होगा, एफ एफ डॉट डी एस, सिंस एफ एफ और डॉट डी एस दोनों सेम डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है, सो इट विल कम माइनस,
ठीक है, 180 आपका एंगल बनेगा, cos 180 माइनस हो जाएगा, सो एंगल, सॉरी मैं फोर्स लिख देता हूँ, माइनस म्यू mg इनटू ds। नाउ ds इज मैग्नीट्यूड, नॉट ds, s लिया ना, s मैग्नीट्यूड है, तो ये वर्क डन है। दिस वर्क डन, बताया ना, दिस वर्क डन इज कैलकुलेट एज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो आई टेक द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस equals to this work done by friction, ठीक है। एंड लॉस को मैं कैसे लिखूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम, क्लियर, दैट मींस दिस इज द फ्रिक्शन। सो व्हाट विल बी माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब जब दोनों के दोनों ब्लॉक एक डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे, दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी, जीरो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो जाएगी। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो अभी आफ्टर कोलिजन इसमें काइनेटिक एनर्जी है, दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी लेंगे क्योंकि दोनों की ही एनर्जी है, क्लियर। दिस विल इक्वल्स टू द mu mgs, that means mu mg displacement, okay, this is negative, so work done negative है, नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, so यहां से मास मास भी कैंसिल हो जाएंगे, and this v is, we know this is 10, clear, half and half will become 1, so simply v square mu, ओके, m से m कैंसिल होके g into s, वेलोसिटी v is I think 10, v10 था, ठीक है, into 10 divided by 10 equals to s. What is the mu? Mu is 0.1, 0.1 पुट करोगे इतना से निकल गया, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया इसका माप भी 180, क्लियर, समझ में आया, ठीक है, कुछ नहीं, कोलिजन तक तो समझ में आ गया। कोलिजन तक के बाद हमने क्या करा, हमने इसको एनर्जी सॉल्व किया, जो फ्रिक्शन है वर्क डन, वर्क लगाया फ्रिक्शन ने, और फ्रिक्शन वर्क लगाने के बाद जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, ठीक है, वो हमने लगाया और हमें आंसर, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। So this is also interesting question. You will get some more knowledge in this because apart from this data conservation method. ठीक है, let me understand. Let me tell you what the condition of the question is. There are two blocks. Suppose this is the A block. This is the B block. ठीक है, in B block at the one side there is a spring attached. Okay, which having the K coefficient of spring is given 50 kilonewton per kg per meter, ठीक है। The block A is moving with initial velocity 4 meter per second, clear। जो जिस सरफेस पे ये मूव कर रहे हैं that surface is smooth, clear। अब सोचो, बिकॉज B ब्लॉक आपका रेस्ट पर है, अब यहां पर कोलिजन होना है, जो ब्लॉक A है इट विल स्ट्राइक द स्प्रिंग, क्या होगा, ये स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करेगा। अगर आपकी स्प्रिंग है वो बहुत रिजिड है, मतलब उसकी जो स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, सो वो कंप्रेस नहीं हो पाएगी। हाँ, बट थोड़ी सॉफ्ट स्प्रिंग है, उसकी जो स्टिफनेस है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, उसकी स्टिफनेस थोड़ी सी कम होगी, तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग कोलैप्स करेगी, कंप्रेस होगी, और साथ साथ बी को भी मोशन देगी, बी और ब्लॉक को भी मोशन देगी, क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा है कि जब ये ए ब्लॉक स्ट्राइक करेगा स्प्रिंग पे, तब मैक्सिमम स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो सकती है, दैट मींस द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। सो as I have explained you thing, let me explain you one more time. Okay, so as this block is moving towards block B, ठीक है, मूव कर रहा है, मूव करते 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 यहाँ आएगा, यहाँ आते आते ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जैसे ही इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया
इस पूरे सिस्टम में फोर्स पड़ा, चेंज हुआ, स्टेट में चेंज आया, फोर्स पे फोर्स लगेगा। तो जैसे ही इसमें फोर्स लगा, ये जैसे टच हुआ, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आगे तरफ मूव करेगा। बट यहाँ पर अभी एनर्जी इतनी ज्यादा है इस ब्लॉक ए की कि यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इसकी ब्लॉक ए की, इट विल ट्राई टू ट्रांसफर इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, potential energy of the spring as well as the kinetic energy of this whole spring and block B, ठीक है। और यहाँ पर जो स्प्रिंग दे रखी है इट्स द मासलेस, ये स्प्रिंग है इट्स मासलेस। अगर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होगा तो हम इसे मासलेस मानेंगे। क्लियर, आप समझ पा रहे हो? तो मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? सोचो, ये ब्लॉक यहाँ मूव कर रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब ब्लॉक बी की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, एट द सेम टाइम ब्लॉक ए की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। और उस केस में जो कंप्रेशन होगा, उस केस में जो कंप्रेशन होगा दैट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होगा, अब जो पोटेंशियल एनर्जी भर चुकी है इसके अंदर, इट विल गेट ट्राई टू एक्सपेंड दिस बोथ द, मतलब ये दोनों गैप एक्सपेंड करेगा दोनों ब्लॉक का, ठीक है। जिसकी वजह से ए ब्लॉक पे फोर्स पड़ेगा नेगेटिव एक्स पे, बी ब्लॉक पे फर्दर फोर्स पड़ेगा पॉजिटिव एक्स पे, ठीक है। यानी बी ब्लॉक की वेलोसिटी फिर दोबारा बढ़ेगी और ए ब्लॉक की वेलोसिटी अब यहाँ पे कम होगी और कम होगी, ठीक है। सो एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा कंप्रेशन होगा। वो कौन सा इंस्टेंट है, वो कौन सा पॉइंट है? जब दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी, दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द कैच। यहाँ पर बस यही कैच था, बाकी क्वेश्चन कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स दिस इज द इनिशियल, ओके दिस इज द इनिशियल थिंग। अब जो फाइनल, सॉरी, जो फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट है। ये अपनी रिक्वायर्ड स्टेट। रिक्वायर्ड स्टेट में क्या है, ये भी अब सॉरी यहाँ पर ना ये अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है से। और यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी v है। क्लियर? इसकी वेलोसिटी u दे रखी है इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी जो u है इट इज 0 है, ठीक है। क्लियर? सो आई अप्लाई द कंजर्वेशन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दैट मींस m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2, ठीक। वैल्यू लिख देते हैं 1 into 4 plus 1 into 0, 1 into v, 1 into v। यहाँ से वेलोसिटी v आ जाएगी। क्या है वेलोसिटी? ये वन था, दिस इज 4, दिस 4, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एनर्जी इक्वेशन लगा देनी है। एनर्जी इक्वेशन कैसे लगानी है? कैसे? क्योंकि बिफोर दिस थिंग देयर इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए थी, वो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी है नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये मैं लगाता हूँ। वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1, एनर्जी कर देते हैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो थोड़ा कम हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, कैच कर देता हूँ क्योंकि आफ्टर दिस की बात कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड स्टेट की, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
of spring. Potential energy of spring. I think ये आपको नहीं दिख रहा होगा. Okay. Here थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ा मेरे को, आपको लिखना होगा. ठीक है. So just we have to put the values. So just take the next page. So I have shifted this little bit. Continue. So let's put the values. So kinetic energy is half m1 u1 square. ये तो जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे u जो है वो जीरो है. Zero. Kinetic energy of block A after collision, that is half m1 b square. Same for the B, half m2 b square. Now what should be the potential energy? It will be half ax square. ये आपको मैंने अभी तक बताया नहीं, but you must know this. As you are the mechanical engineer, you should know this. The potential energy in the spring stored, that value is half kx square, where k is the spring constant and k is the compression in the string. Clear? Compression or expansion, the amount of expansion or amount of compression, that is x, जो कि हमें निकालना है. Clear? So let's put the values and get the answer. ठीक है? Okay, I just write the values. यहाँ पे सब half of cancel हो जाएगा, and from here you will get the value of x got its square. You will get 1.6 Newton to power minus 4, because यहाँ पे जो value है x in किलो न्यूटन. Okay, so आप वो भी लेना पड़ेगा. So from here you will get second 0.126. This amount of compression in the spring will be there, which is maximum. Okay, so students, from here we will continue next class. So till now we have completed our translation motion. Now and we have seen circular motion. So in next lecture we will see the rotation motion. Okay, so next meet in next lecture. Thank you.